بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ نون لیگ کرے گی پنجاب پر راج، حمزہ شہباز کے سر سج گیا وزیر اعلیٰ کا تاج۔ حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب۔ حمزہ شہباز نے 189 ووٹ حاصل کیے، پرویز الہی کو 186 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ ڈپٹی سپیکر نے چودھری شجاعت کا خط دکھایا اور پڑھ کر سنایا۔ چودھری شجاعت کے خط کی روشنی میں کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد۔ 10 ووٹ مسترد ہونے کے بعد پرویز الہی کے ووٹوں کی تعداد 176 رہ گئی۔ حمزہ شہباز کو چودھری پرویز الہی پر 3 ووٹوں کی برتری۔ نون لیگ کرے گی پنجاب پر راج، حمزہ شہباز کے سر سج گیا وزیر اعلیٰ کا تاج۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب۔ حمزہ شہباز نے 189 ووٹ حاصل کیے، پرویز الہی کو 186 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ ڈپٹی سپیکر نے چودھری شجاعت کا خط دکھایا اور پڑھ کر سنایا۔ چودھری شجاعت کے خط کی روشنی میں کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد۔ 10 ووٹ مسترد ہونے کے بعد پرویز الہی کے ووٹوں کی تعداد 176 رہ گئی۔ حمزہ شہباز کو چودھری پرویز الہی پر 3 ووٹوں کی برتری۔ نون لیگ کرے گی پنجاب پر راج، حمزہ شہباز کے سر سج گیا وزیر اعلیٰ کا تاج۔ حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب۔ مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز بطور وزیر اعلیٰ کامیابی، حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی پر جنوبی پنجاب بھر میں جشن۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کا ڈھول کی تھاپ پر جشن۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا جشن، مٹھائیاں تقسیم، کارکنان کے پی ڈی ایم کے حق میں نعرے۔ مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ کامیابی، حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی پر جنوبی پنجاب بھر میں جشن۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کا ڈھول کی تھاپ پر جشن۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا جشن، مٹھائیاں تقسیم، کارکنان کے پی ڈی ایم کے حق میں نعرے۔ مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ کامیابی، حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی پر جنوبی پنجاب بھر میں جشن کا سماں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کا ڈھول کی تھاپ پر جشن۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا جشن، مٹھائیاں تقسیم۔ اصل کھلاڑی آصف زرداری، وزیر اعلیٰ کے لیے بچنے والی بساط میں بازی پلٹ گئی۔ اکثریت کے باوجود تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار پرویز الہی ہار گئے۔ اصل کھلاڑی آصف زرداری، وزیر اعلیٰ کے لیے بچنے والی بساط میں بازی پلٹ گئی۔ اکثریت کے باوجود تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار پرویز الہی ہار گئے۔ اصل کھلاڑی آصف زرداری، وزیر اعلیٰ کے لیے بچنے والی بساط میں بازی پلٹ گئی۔ اکثریت کے باوجود تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار پرویز الہی ہار گئے۔ فیصل شاہکار آئی جی پنجاب تعینات، راؤ سردار کو آئی جی ریلویز تعینات کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے تعیناتوں کی منظوری دے دی، آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا۔ فیصل شاہکار آئی جی پنجاب تعینات، راؤ سردار کو آئی جی ریلویز تعینات کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے تعیناتیوں کی منظوری دے دی۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل شاہکار آئی جی پنجاب تعینات، راؤ سردار کو آئی جی ریلویز تعینات کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے تعیناتیوں کی منظوری دے دی، فیصل شاہکار آئی جی پنجاب تعینات۔ واسا ملتان عوام کو کرنے لگا پریشان، ابر رحمت بن گئی زحمت، نکاسی آپ کے ناقص انتظامات۔ حسین اگاہی روڈ پر بارشی پانی جمع ہو گیا، کاروبار متاثر ہونے پر تاجر پریشان۔ دیکھتے ہیں فراز کی رپورٹ۔ شہر اولیا میں ابر رحمت زحمت بن گئی۔ گزشتہ رات بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ حسین اگاہی روڈ جوہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث نکاسیاب کا مناسب انتظامات نہ ہونے سے کاروبار بھی متاثر ہیں۔ واسا کا نظام بڑا ہی دھرم برم ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہمارا کاروبار بالکل ہی بند ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے بارشی پانی جمع ہونے سے وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، جبکہ دفاتر جانے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چاروں طرف پانی جمع ہوا ہے، ادھر نہ کوئی پانی نکاسی کا انتظام ہے، نہ کچھ لینا، نہ مسئلہ ہے، ہر آنے جانے میں بھی تنگ ہوتا ہے۔ تاجروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے، تاہم انہوں نے متعلقہ حکام سے روڈ پر نکاسیاب کا فوری بندوبست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محمد فراز، روہی ملتان۔ شہر اولیا کا موسم خوشگوار تو ہوا، لیکن گلیوں محلوں میں جمع ہونے والے بارشی پانی شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ سیوریج لائنیں مکمل بند ہونے سے گندا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا۔
बच्चों और बुजुर्गों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। राना बिलाल की रिपोर्ट। वासा इंतजामिया की नाअहली, बारिशी पानी जमा होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। मुल्तान के इलाका कन्नी वाला टोया में निकासी आपके नाकिस इंतजामात के बायस गंदा पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया, जबकि सीवी लाइन बंद होने से इलाका मकीन परेशान है। बारिश आती है और यहाँ पर ये तकरीबन 2 किलोमीटर तक ये पानी जमा हो जाता है और इंतजामिया जो है निकालने में नाकाम है। तो मेरी इंतजामिया से ये गुजारिश है कि पानी का कम से कम बारिश के टाइम ये सीवरेज को बहाल किया जाए, और इसके लिए ये है कि ये भी रोड बंद है और दूसरा रोड भी बंद है। पानी की वजह से बहुत परेशान है, गाड़ी हमारी बंद हो रही है, रोड जाम है, हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। ये बहुत हमें परेशानी है, ये पानी का हल होना चाहिए। इलाका मकीनों का कहना था कि बारहा दरखास्तें देने के बावजूद वासा इंतजामिया की जानिब से कोई ऑपरेशन करने नहीं आया और न ही कोई अवामी नुमाइंदा इनकी बात सुनने को तैयार है। खवातीन बच्चे वगैरह स्कूल नहीं जा पाते, खवातीन बाहर नहीं निकल पाती, पानी इतना जमा हो जाता है कि फिसलने का गिरने का खतरा होता है। जब भी निकलती हैं कोई ना कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है। हमारा यहाँ पर बहुत अरसे से ये मसला दरपेश है। हमें हमारा खाने वाला टोया हमारा पार्क है, इसके बाहर आप देखें थोड़ा सा भी यहाँ बारिश होगी तो पानी यहाँ खड़ा हो जाना है मुस्तकिल। और जैसे अब छोटे बच्चे हैं वो निकलेंगे बाहर खेलने के लिए, जाहिर सी बात छोटे बच्चों को नहीं पता, तो वो पानी में गिर जाते हैं। बुजुर्गों, बच्चों और बिलखुसूस नमाजी हजरात को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि घर के बाहर पानी खड़ा रहने से खवातीन घरों तक मैसूर हो गई है। इसलिए इंतजामिया और वासा की नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से यहाँ पे पानी खड़ा होता है। यहाँ पे पार्क में सुबह वॉक करने के लिए औरतें, बच्चे और बूढ़े हजरात जो हैं उनको इतनी तंगी का सामना है कि वो यहाँ पे हफ्ता 10 दिन वो पार्क भी नहीं जा सकते। इस इलाके में गंदगी इतनी आती है, बाहर कोई भी आते हैं, जब बासे के बिल आते हैं तो वो नाले तोड़ने लग जाते हैं आगे, वो इस तरह करते हैं। यहाँ के बिल भेज देते हैं, बहुत सफाई एक आने की नहीं है इधर। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इलाके में जल्द सीवेज मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। शहर औलिया में बारिश का पानी शहरियों के लिए अजाब बन गया। सीवरेज की लाइनें बंद, गलियों में खड़ा पानी घरों में दाखिल, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। वासा इंतजामिया गायब। सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान में गुज़िश्ता शाम होने वाली बारिश वबाले जान बन गई। शहर में कई फुट पानी जमा हो गया, हर सड़क पानी में डूब गई, सीवरेज का सिस्टम बंद होकर रह गया, गलियों में जमा होने वाला पानी घरों में दाखिल हो गया, शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। वासा इंतजामिया की नाअहली के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होकर रह गई। क्या अगर जब बारिश होती है तो फिर पानी निकालने का मसला है ही नहीं, और जब नहीं होता तो कम अज़ कम 7-8 दिन कम अज़ कम जो है ना यहाँ पर वो हाल होता है। ना कोई बच्चा अंदर जा सकता है, ना कोई लेडीज अंदर जा सकती है, और हमारे लिए बहुत परेशानी। जो स्मेल वगैरह होती है वो एक अलग चीज़ है। वाटर वर्क्स रोड, न्यू मुल्तान, गुलिस्तान चौक, रशीदाबाद चौक समेत मुल्तान के मुतादिद इलाके बारिश के पानी की वजह से ज़ेरे आब आ गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में फंस कर रह गईं। इसके अंदर गटरों का पानी भी शामिल हो चुका हुआ है और मच्छर की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो रही है, जो बच्चों के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। इस वक्त डेंगू का भी बहुत ज़्यादा खतरा हुआ है। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है साहिब इख्तियार से कि इसको पानी को जल्द अज जल्द यहाँ से जो है वो निकाला जाए। बदबू इतनी, स्मेल इतनी ज़्यादा है, मच्छर की अफजाइश इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर बीमारियाँ फैलने का बहुत खदशा है, और खांसी, नज़ला, बुखार तो स्टार्ट भी हो गया यहाँ पर। शहरियों ने नाकिस कारकर्दगी पर वासा इंतजामिया को खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि बारिश के पानी को जमा होने से रोकने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। मुल्तान में कल शाम से शुरू होने वाली बारिश कई शहरियों के लिए अब्र रहमत बन के बरस रही है, तो कई शहरियों के लिए अब्र ज़हमत भी बन रही है। मुल्तान के शहरियों को बारिश के बाद शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, मुल्तान। रहीम यार खान में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लकड़ी मंडी चौक, खानपुर अड्डा, लिवरपुल, हर तरफ पानी ही पानी। चक 72 और शाही रोड भी डूब गई। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर पानी फेर दिया। लकड़ मंडी चौक, बेल्जियम चौक, लिवरपुल, चक 72 और शाही रोड नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। शहरी ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए, कारोबार ठप होकर रह गए। हमें जी बहुत मुश्किलात का सामना है। बारिश का पानी आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारा बंद हुआ है, पूरा शहर बंद हुआ है। ये मेगा प्रोजेक्ट था जो शहबाज शरीफ ने वजीर आला था उस टाइम शुरू किया था, मेगा प्रोजेक्ट अरबों रुपए का,
और पूरा शहर डूबा चुका है, सारा शहर आप खुद देख लें, पूरा शहर डूबा हुआ है। यहाँ पर कोई नहीं आ रहा, आपके सामने अगर इंतजामिया होती तो यहाँ पर पता लगता आप लोगों को भी। ये रात का पानी खड़ा है, जब रात से बारिश हुई थी अभी तक खड़ा है, तकरीबन ये हो सकता है कि अभी शाम तक भी ना आए। 53 साल तो ऐसा देखते आ रहे हैं, इतने पानी का किसी भी बंदे ने जड़ी भी हुकूमत आई ना कोई निजाम नहीं किया सही। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए अमली इक़दाम किए जाएं ताकि रोज रोज की मुश्किलात से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नाअहली, गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर के गुंजान आबाद इलाके ज़ेरे आब, गर्ल्स कॉलेज के करीब पानी में करंट आने से एक शख्स जान बहक। निकासी आब के नाकिस इंतजामात पर इलाका मकीन परेशान। शहरियों ने मजीद बारिश होने पर सूरत हाल खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया। आमिर डोगर रिपोर्ट करेंगे। बारिश के बाद शहरियों के चेहरे तो खिल उठे, मगर साथ ही म्यूनसिपल कारपोरेशन की नाअहली भी खुलकर सामने आ गई। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद रेलवे रोड, गार्डन रोड, किनवान चौक, बुखारी वाला और दीगर इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसके बाइस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि कचहरी में भी पानी जमा होने से बुखला और साइलिन परेशान है। ट्यूशन जाते हैं, रास्ते में बहुत ज्यादा गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान है। पानी निकाला जाए। नमाज का टाइम होगा, हम नमाज पढ़ने जाएंगे, आगे सारा गंदा पानी है। यहाँ पे हमारा घर है, मोटरसाइकिल कोई भी बाइक आती है रास्ते में बंद हो जाती है। रात को इतनी भी बारिश हुई, अभी तक यहाँ पे कोई अमला नहीं है, कोई इंतजामिया नहीं आया। शहरियों का कहना था कि बारिश होने से गर्ल्स कॉलेज रोड सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बारहा दरखास्तों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अस्पताल रोड में साथ गर्ल्स कॉलेज भी है, जहाँ पर एक सुबह एक वाक़या भी हो गया, एक मर्द की एक आदमी की जान भी चली गई है बिजली का करंट लगने की वजह से। और आगे आप चले जाएं तो वहाँ गटर के मेन होल खुले हुए हैं, वहाँ पर भी खतरा है कि खुदा न खास्ता वो गिर ना जाए। और कारकर्दगी उनकी पोजीशन ये है कि कहीं पर भी पानी निकालने का कोई किसी किस्म का कोई इंतजाम अभी तक तो नहीं किया गया। परेशान हाल शहरियों ने मुतलका हुकाम से फौरी निकासी याब की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रहीम यार खान, शेख ज़ैद अस्पताल के आई डिपार्टमेंट में ग्रैंड हेल्थ अलायंस और YDA के एजाज़ी तकरीब। हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन और असिस्टेंट प्रोफेसर सजाद अली हैदर को लंदन से आला हेल्थ कोर्स करने पर शील्ड दी गई। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान में शेख ज़ैद अस्पताल के आई डिपार्टमेंट में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ज़ेरे एहतमाम एजाजी तकरीब सजाई गई। हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन और असिस्टेंट प्रोफेसर सजाद अली हैदर ने लंदन में शोबे सेहत से मुतालिक जदीद कोर्स किए। आई डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन को 20वें ग्रेड में तरक्की दी गई। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सजाद अली हैदर ने लंदन से 6 माह का आंखों का टेढ़ेपन की बीमारी को दूर करने का जदीद कोर्स मुकम्मल किया। मैं आई डिपार्टमेंट से मेडिकल में, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला हमें उसके लिहाज से क्रेडिट भी देता है, ऑनर भी देता है। और डॉक्टर सजाद ये जो पोस्ट फेलोशिप करके हैं, स्पेशल ट्रेनिंग बच्चों को डिजीज इधर बहुत ज़्यादा है और हम 3 सूबों के संगम पर रहते हैं और रिमोट एरिया होने की वजह से मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें बच्चों की सर्जरी के लिहाज से अब इंस्ट्रूमेंट भी देगी। लंदन से आंखों के टेढ़ेपन को दूर करने का जदीद और आला कोर्स करने पर असिस्टेंट प्रोफेसर सजाद अली हैदर ने अपनी खुशी का इजहार किया और तजर्बात से आगाह किया। एक और एजाजी डिग्री है जिसके लिए मैं लंदन गया और वहाँ पे जाके मैंने बच्चों के आंखों के अमराज की मजीद जदीद टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल की है, जिसमें उसके स्ट्रैबिस्मस जो कि भेंगापन जिसको कहा जाता है, उसमें बच्चों और बड़ों दोनों के अमराज के अंदर स्पेशल ट्रेनिंग में हासिल करके आया हूँ। सीनियर डॉक्टर ने कहा कि आई डिपार्टमेंट में हर मरीज को इलाज मुआलजा की जदीद व बेहतरीन सहूलियात दी जाएंगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मौसम ठंडा हुआ तो शहरियों ने मजा दुबाला करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी गर्मा गर्म समोसों और पकौड़ों पर हाथ साफ करते हुए मौसम को एंजॉय करते रहे। राना बिलाल रिपोर्ट करेंगे। शहर अलिया का मौसम खुशगवार हुआ तो गर्मी और हब्स के सताए शहरियों ने फूड्स पॉइंट का रुख कर लिया। शहरियों पर कुदरत मेहरबान हुई तो आसमान पर बादलों ने भी बसेरा कर लिया। खास तौर पर नौजवान अपने दोस्तों के हमरा समोसों से लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए। वैसे मुल्तान में तो काफी अरसे के बाद ऐसा मौसम होता है, तो इस मौसम में जब बंदा समोसे खाने आए तो फिर उसके ऊपर तो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो बस उसी को एंजॉय करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं दोस्तों के साथ।
शहरियों का कहना था कि काफी दिनों के बाद मौसम खुशगवार हुआ, दोस्तों के साथ मौसम एंजॉय करने आए हैं। जुलाई के महीने में इस तरह का मौसम किसी नेमत से कम नहीं। जैसे आपको पता है मुल्तान में इस तरह का मौसम शादो नादिर ही होता है, तो आज माशाल्लाह से मौसम बड़ा खुशगवार था, तो हमने सोचा कि एक गैदरिंग करते हैं और अच्छे स्पॉट्स पे इसी तरह एंजॉय कर रहे हैं वेदर को, अपने फूड्स जो आउटलेट्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। दुकानदारों के चेहरे भी खुशी से खिले दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना था कि आम दिनों के निस्बत खुशगवार मौसम में दुकानदारी में भी इजाफा होता है। तो जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो लोग एंजॉय करते हैं समोसे खाने के लिए, तो आम रूटीन में भी माशाल्लाह लोग खाते हैं। जब बारिश का ऐसा मौसम हो जाता है ना तो ज्यादा लोग एंजॉय करते हैं खाने पीने के लिए। सावन के इस मौसम में जहां शहरी खुशी का इजहार करते नजर आते हैं, तो वहीं अगर समोसों और पकौड़ों का तड़का लग जाए तो मजा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ राणा बिलाल, मुल्तान। सरगोधा में इत्तफाक स्टील के ज़ेर एहतमाम बिल्डर्स और पब्लिक में 60 ग्रेड के फ़ायदे उजागर करने के लिए सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस वक्त नईम खान वहां मौजूद हैं। जी नईम खान, बताइएगा क्या अहवाल है इस वक्त तकरीब का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है सेमिनार जारी है और यहाँ पर जो है ग्रेड 60 की अवेयरनेस जो लोगों को देने के लिए यहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया है। तो सिक्का ट्रेडर्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पर इत्तफाक स्टील के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो सेमिनार का बुनियादी मकसद जो है यहाँ पर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस सेमिनार का बुनियादी मकसद ही लोगों को इस बात की अवेयरनेस देनी थी कि किसी भी बिल्डिंग में सरिये की कितनी अहमियत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इत्तफाक ग्रेड 60 बनाने वाला सबसे पुराना इदारा है जो ग्रेड 60 की तमाम तर मेयार पे पूरा उतरता है और अपने सरिये को बिल्कुल अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरा तैयार करता है। और हमें सरगोधा शहर में ये एजाज़ हासिल है कि हम इत्तफाक स्टील के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इत्तफाक स्टील को लोगों तक पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये थे वलीद सिक्का और हमारे साथ इस वक्त शहरियार सिक्का भी मौजूद है और हम उनसे जानते हैं कि जो ग्रेड 60 का जो सरिया है वो लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ग्रेड 60 बेसिकली 60,000 PSI स्ट्रेंथ को शो करता है और घर की ताकत के लिए जो अल्टीमेट स्टील इस वक्त दुनिया में लेटेस्ट इस्तेमाल हो रहा है वो ये 60 ग्रेड का स्टील बारी है। कुछ लोग फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी ये काम करते हैं कि वो स्टील में कुछ थोड़ा सा इकोनॉमिकल ऑप्शन 40 ग्रेड की तरफ चले जाते हैं या अंडर साइज की तरफ चले जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्डिंग के लिए मौजू नहीं। तो लिहाजा इस सेमिनार से ग्रेड 60 की जनरल अवेयरनेस और ग्रेड 60 की जो परचेज डिसीजन है कस्टमर्स का वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा इंशाल्लाह। जी, ये थे शहरियार सिक्का और जो बता रहे थे कि ग्रेड 60 जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए और उसकी मजबूती के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। नईम खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान के तमाम थिएटर्स को विजिलेंस कमेटी की जानिब से सेंसर रिहर्सल चेक करने के बाद ड्रामा नुमाइश की इजाज़त दे दी गई। संगम और बाबर थिएटर पर एसी हेडक्वार्टर आफ्ताब डोगर ने विजिलेंस कमेटी के हमरा चेकिंग की। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के तमाम थिएटर्स को सेंसर रिहर्सल चेक करने के बाद ड्रामा नुमाइश की जो इजाज़त है वो दे दी गई है और इस वक्त एसी हेडक्वार्टर आफ्ताब डोगर इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, विजिलेंस टीम के हमरा। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज मुल्तान के 3 थिएटर्स में जो है वो सेंसर रिहर्सल चेक की गई है, किस तरह के कवायद ज़वाबित जो है वो आपने इस्तेमाल? तीनों थिएटरों की रिहर्सल चेक की गई। ड्रामे तकरीबन कुछ नई कास्ट के साथ पुराने ड्रामे पेश किए जा रहे हैं, इसलिए दोबारा रिहर्सल इनकी सख्ती से चेक की गई है और हिदायत भी की गई है कि ज़ाब्ता इखलाक और टाइमिंग की ख़ास तौर पर ख्याल रखें और इस सिलसिले में कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी ताकि ये जो हमारा तवानाई का बहरान है इस पर भी हम काबू पा सकें। बाकी जो हमारे नए आर्टिस्ट आते हैं उनको भी इस हिदायत के साथ इजाज़त दी गई है कि वो मुल्तान में जो ज़ाब्ता इखलाक नाफिज है उसके मुताबिक अपना काम अंजाम दें और इसमें उनको अगर कोई किसी भी किस्म की कोई इससे ज्यादती या कोई वल्गैरिटी की तो उस पर फौरी कार्रवाई की जाए। सिंपल है हमारा कि हमारा थिएटर जो है जिस तरफ इस टाइम जा रहा है इसको मज़ीद हम ऊपर लेके जाएं ताकि हमारे जो तफरी का एक मुल्तान में ख़ास तौर पे थिएटर जो है कि ये हमारा बड़ा एक मरकज़ है, तो इनमें लोग खुशी से आएँ और उनको अपनी तफरी जो है उनका अच्छा टाइम तफरी का उनको मिले। और हमारे जो डायरेक्टर और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं वो अपनी मेहनत से काफ़ी हद तक इस चीज़ में कामयाब हैं कि लोग अब आ रहे हैं
और इंशाल्लाह आइंदा भी इसमें बेहतरी की कोशिश की जाएगी। मिलजुल के हम इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। इस वक्त हमारे हमरा मौजूद है जिनका इस हवाले से ये कहना है कि थिएटर को बेहतर करने के लिए सरतोड़ जो कोशिश है वो कर रहे हैं और किसी हद तक इसमें कामयाब भी हैं। बाकी उनका ये भी कहना है कि फनकार और थिएटर इंतजामिया अगर साथ दे तो इस मिशन को जो है वो जल्द जो है वो पाए तक मेल तक पहुंचाया जा सकता है। कर रहे थे। शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।